today we are going to discuss class 9th English first chapter, The Fun They Had. Okay, before discussing this chapter, I will tell you this story is about 2157 school. Do you have any idea what type of school they will have? Just look at the images below. Now do you get some ideas? They have some virtual classroom. They will learn from computers. There will be robotic teachers, tutors, both, and there will be moving e-text also. And do you think this is similar to like online classes now we are having due to the COVID pandemic? Yes, this is same, but we have human teachers who are teaching us from online. But in this story, they have mechanical teachers who will teach him online. So just start this chapter. The fun they had before you read. The story we shall read is set in the future, when books and school as we now know them will perhaps not exist. How will children then study them? The diagram below may give you some ideas. In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. Have you ever read words on television screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on papers? Would you like such books better? Now, when we make videos like this, we use PDFs which are present online. We don't use books. This is type of this. These are known as telegrams. So now let us read the story. Paragraph 1. Margie even wrote about it that night in her diary, one page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." It was an old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, And then, when they turned back to the page before, it had the same word on it, and it had when they read it the first time. So, in this story, in the paragraph 1, it is written that मार्गी जो है एक लड़की है, उसने रात में अपनी डायरी में लिखा, डेट लिखी उसने 17 मई 2157 और उसने लिखा कि आज के दिन टॉमी को एक रियल बुक मिली है. तो यहाँ रियल बुक किस चीज़ को दर्शा रहा है? यहाँ पे ये दर्शा रहा है वो बुक्स जो कि प्रिंटेड होती है, जो बुक्स हम आज यूज़ करते हैं. तो उसमें उसने लिखा वो बहुत ही पुरानी बुक है, और जो मार्गी के ग्रैंडफादर है उसने उन्हें एक बार बताया था कि जब वो एक लिटिल बॉय थे ना, तो उसके ग्रैंडफादर उन्हें बताते थे कि तब पहले ना एक ऐसा समय था जब जो भी स्टोरीज़ वगैरह सब थी ना पेपर पे प्रिंट होती थी. तो मार्गी और टॉमी उन्होंने उसके पेजेस टर्न किए जो कि येलो थे और क्रिंकली थे, मतलब उस पर बहुत सारी लाइंस बनी थी, और वो उसको पढ़ते हुए इतने बिजी थे और उन्हें इतनी फ़नी लग रही थी इन वर्ड्स को रीड करना, जो कि एक ही जगह पे थी, हिल नहीं रही थी जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पे हिलती थी उनके टीचर्स जब उन्हें पढ़ाते थे. तो उन्हें इसमें बड़ा मज़ा आ रहा था, तो वो देख रहे थे, और जब वो पेज को वापस पीछे टर्न करते तो वही सेम वर्ड्स उस पर लिखे रहते थे. तो अब हम देखते हैं पैराग्राफ 2 को डिस्कस करते हैं. तो पहले हम इसको रीड करेंगे. "Gee," said Tommy, "what a waste. When you throw the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away." "Same with mine," said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed without looking, because he was busy reading. "In the attic." "What's it about?" "School." तो इस वाले पे टॉमी बोलते हैं क्या बेकार की चीज़ है ये. इसमें जब हम इन बुक्स को पूरा पढ़ लेंगे, इस पैराग्राफ में यही लिखा गया है कि जब हम इस बुक को पूरा पढ़ लेंगे तो हमें तो इसे फेंकना पड़ेगा, लेकिन ये तो बहुत बुरी बात है. हम तो टेलीविज़न स्क्रीन्स पे तो करोड़ों, हज़ारों, लाखों कितनी भी बुक्स पढ़ के उसको वापस रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और ये अच्छी है और नॉलेज पाने के लिए.
मैं उसे कभी ठेक नहीं सकता हूँ। तो मार्गी भी उसके साथ सहमत है। मार्गी जो है वो 11 ईयर्स की है और उसने ज़्यादा टेली बुक्स नहीं देखी जितनी टॉमी ने देखी है, क्योंकि वो 13 ईयर्स का था। तो वो उससे पूछते तुम्हें ये कहाँ मिली? तो वो बोलता है, ऊपर देखते हुए कह रहा है आर्टिक में मिली है मुझे। वो जो स्पेस होती है ना रूफ़ के ऊपर, जो स्टोर रूम की तरह यूज़ होती है, उसको हम एटिक कहते हैं। तो वो बस ऊपर पॉइंट आउट करते हैं। वो बिज़ी था इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है। तो फिर वो पूछते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में है? तो वो बोलता है स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for county inspector. तो जो मार्गी है ना वो एकदम चौंक गई। उसने कहा स्कूल के बारे में कौन लिखता है? मुझे तो स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद है। उसको इसलिए स्कूल पसंद नहीं था क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था उसको बार बार टेस्ट पहले से भी पसंद नहीं था, और अब उसको और नहीं पसंद है क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर जो है ना, जो उसको ज्योग्राफी सिस्टम में टेस्ट देते जा रहा था और वो उस पर ख़राब से ख़राब करती जा रही थी, जब तक कि उसकी मम्मी ने अपना सर हिला के मतलब हार मान के सर नहीं हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को सेंड नहीं किया मैसेज। तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे कि काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है। He was a round little man with red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो अब हम देखते हैं कि काउंटी इंस्पेक्टर क्या है। ये एक राउंड लिटिल मैन होता है, टाइप का होता है, जिसके रेड फेस होती है और उसके वो पूरा बॉक्स का होता है और उसके अंदर टूल्स, डायल्स और वायर्स ही होती है। तो वो आता है और मार्जी को देख के स्माइल करता है, उसको एक एप्पल देता है और फिर जो उसका मैकेनिकल टीचर है ना उसको साइड में ले जाता है। तो मार्गी सोच रही होती है कि काश उसको पता ही ना हो कि इसको ठीक कैसे करे, बट उसको पता था। और कुछ एक घंटे बाद वो आता है फिर से और उसके साथ जो उसका मैकेनिकल टीचर है जो कि बड़ा सा है, ब्लैक कलर का है और उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो आता है जिस पे बहुत सारे लेसन्स दिखाए जा रहे हैं और क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो वो इतना ख़राब भी नहीं था। जो मार्गी को सबसे बेकार लगता था, जो उसको बिल्कुल नहीं पसंद था, वो जगह थी जहाँ पे उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर को डालना होता था। तो उसको हमेशा उन सारी चीज़ों को पंच कोड में लिखना होता था और जो उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो मार्क्स तो बिना टाइम के ही कैलकुलेट कर देता था। और जब वो 6 साल की थी तब से उससे पढ़ रही थी। तो आपने भी देखा होगा जब से आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो आप कोई ऐप्स यूज़ कर रहे हो, जैसे कि गूगल क्लासरूम हो गया या फिर कोई और ऐप, तो आपको भी उसमें होमवर्क्स को पुट करना होता होगा ऐड अटैचमेंट में जाके। और आप अभी जो टेस्ट दे रहे हैं गूगल फॉर्म वगैरह में, उसमें भी द मार्क्स नो टाइम के साथ कैलकुलेट हो जाती है। ऐसा ही इसमें भी था। चलो अब हम 5th पैराग्राफ देखते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" तो अब
अब हम इस पैराग्राफ को देखते हैं। इसमें कहा गया है जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने सारा काम कर लिया और वो मार्गी को देख के हंसता है, उसके सिर पे ऐसे मतलब थोड़ा सा उसे मारता है, जैसे हम शाबाशी देते हैं ना वैसे मारता है। और वो उसकी मॉम जो थी ना मिसेस जॉन्स, उसको कहते हैं कि इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है, जो इसका ज्योग्राफी सब्जेक्ट था ना मैकेनिकल टीचर का, वो थोड़ी जल्दी चलने लग गया था। ऐसा कभी कभी होता है, मैंने उसका जो लेवल है उसको धीरे कर दिया है एक 10 साल के एवरेज बच्चे के IQ लेवल के हिसाब से। तो क्योंकि उसका जो ओवरऑल पैटर्न है ना प्रोग्रेस का वो सही है, ठीक है। और फिर से वो मार्गी के सर पे ऐसे थोड़ा सा मतलब शाबाशी देता है। मार्गी इस बार तो बहुत डिसअपॉइंटेड हुई। उसको लगा था कि वो अब उसके मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाएगा, जैसे कि वो एक बार टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए लेके गया था, क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। सो फिर वो पूछती है टॉमी से कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Marjorie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the books over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो अब वो पूछती है उससे पूछती है, तो टॉमी उसको मतलब ऐसे देखता है, गौर से देखता है और उससे पूछता है, क्योंकि वो हमारे तरीके के स्कूल नहीं थे ना बेवकूफ़। तो फिर वो उससे बोलते हैं कि वो 100 से भी ज़्यादा साल पुराने स्कूल थे, सेंचुरीज़ एगो। मतलब बहुत ही ध्यान से उसको बताता है कि बहुत समय पहले के थे, इसलिए सेंचुरीज़ एगो उसने वर्ड डाल दिया यहाँ पे। तो मार्गी मतलब थोड़ी सी हर्ट हो गई। उसने कहा अच्छा ठीक है, मुझे तो नहीं पता कि कैसे स्कूल थे उनके पास। तो फिर वो लोग बुक को रीड कर रहे थे अपने शोल्डर पे रख के। तो उसने कहा ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं। उनके एक टीचर होते थे, तो उनके जो टीचर होते थे ना वो रेगुलर टीचर्स नहीं होते थे, वो एक इंसान होते थे। तो फिर मार्गी पूछती है कि एक इंसान कैसे, एक इंसान टीचर हो सकता है। तो फिर वो कहते हैं बस कुछ नहीं, वो अपने स्टूडेंट्स को, जो कि गर्ल या फिर बॉय जो भी है, उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था। तो अब हम पैराग्राफ 7 देखते हैं। A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much, I bet. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I won't want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers did not live in the house. They had a special building, and all the kids went there. And all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. तो अब वो कहते हैं एक मैन को कैसे पता होगा तो सब कुछ। तो वो कहते हैं क्यों नहीं पता होगा, मेरे पापा को भी बहुत कुछ पता है, जितना कि मेरे टीचर को पता है उनको भी सब पता है। तो फिर वो उसको बताता है, कहते हैं मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन ना फिर मार्जी उससे झगड़ा नहीं करना चाहती है। तो उसने कहा ठीक है, फिर भी मुझे एक अनजान आदमी मेरे घर में नहीं चाहिए मुझे पढ़ाने के लिए। तो टॉमी उस पर हंसने लगता है चिल्ला चिल्ला के। वो कहता है तुम्हें नहीं पता है ज़्यादा मार्गी, जो टीचर्स होते थे वो हमारे घर में नहीं रहते थे, बल्कि वो एक स्पेशल बिल्डिंग में रहते थे जिसको हम स्कूल कहते हैं, और सारे बच्चे वहाँ जाके पढ़ते थे उनसे, और वो सेम ही चीज़ें पढ़ते थे अगर वो एक ही एज के हो तो अब देखते हैं पैराग्राफ 8। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same, they did not do it then way. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Johns, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the books some more with you after school? तब वो कहता है कि मार्गी कहती है कि मेरी माँ कहती है कि टीचर को उतना वैसे पढ़ाना चाहिए जितना कि उसके
स्टूडेंट को पता हो और हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, तो तुम फिर मत करो, तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें उसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्गी उसके बारे में, ओल्ड स्कूल के बारे में और जानना चाहती थी, इसलिए उसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद है। वो अभी आधे भी ख़त्म नहीं हुए थे कि मार्गी की जो मॉम है ना, उसको बुलाती है, कहती है कि तुम्हारा स्कूल का टाइम हो रहा है। तो वो कहती है अभी नहीं बम्बा। तो फिर वो कहती है अभी टॉमी का भी टाइम हो चुका है, तुम दोनों आ जाओ। तो फिर मार्गी पूछती है टॉमी से कि क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ ये बुक और पढ़ सकती हूँ। तो अब देखते हैं कि उसका जवाब क्या था पैराग्राफ 9 में। Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on and the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो अब वो बोलता है ठीक है, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा। तो फिर वो चला गया सीटी बजाते हुए, जो पुरानी सी बुक्स थी डस्टी सी, उसको अपने हाथों में दबा के चल दिया। फिर जो मार्गी अपने स्कूल रूम में चली गई, वो बस उसके बेडरूम के पास ही था। मैकेनिकल टीचर जो था ना, वो ऑन हो चुका था और उसका इंतज़ार कर रहा था, और वो हमेशा इसी टाइम पे रोज़ आ जाता था, बस सैटरडे और संडे के सिवा, क्योंकि उसकी मम्मा कहती थी कि छोटी बच्चियाँ अगर रोज़ रेगुलर आवर्स पे पढ़े तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ती है। तो अब वो स्क्रीन ऊपर उठी और उसने कहा कि आज हम अरिथमेटिक लेसन पढ़ेंगे, एडिशन करेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन का, कल का होमवर्क डाल दो प्रॉपर स्लॉट में। सो अब देखते हैं पैराग्राफ 10। मार्जी डिड सो विद अ सिग. She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together. At the end of the day, they learned the same thing so they could help one another with the homework and talked about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen. When we add fraction 1 by 2 and 1 by 4 and so on, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. तो मार्जी सोच में डूबी हुई थी। वो सोच रही थी कि कैसे तरीके के ओल्ड स्कूल कितने अच्छे होते होंगे। उसके ग्रैंडफादर के जो जब वो छोटे बच्चे थे, सारे बच्चे अपने आसपास से सब उधर जाते होंगे, एक साथ खेलते कूदते हंसते गाते, एक साथ स्कूल यार्ड में बैठते, और एक साथ क्लासरूम में बैठते हुए, एक साथ घर जाते हुए स्कूल के ख़त्म होने पे वो सब एक चीज़ पढ़ते होंगे, तो एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं अपने होमवर्क में और बातें करते होंगे। और जो टीचर्स थे वो तो एक इंसान थे, और जो मैकेनिकल टीचर था उसका वो फ्लैश कर रहा था स्क्रीन पे, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शंस पढ़ा रहा था उसको 1 by 2 और 1 by 4 को जब हम ऐड करेंगे। और मार्गी अभी भी सोच ही रही थी कि किड्स को कितना उधर पुराने समय के बच्चों को कितना मज़ा आता होगा उस ओल्ड डेज़ का स्कूल में, और वो इसके बारे में सोच रही थी और कह रही थी हाँ अबाउट द फन दे हैड, और उनके मज़े के लिए सोच रही थी। तो ये जो स्टोरी है ये किसने लिखी है? आइजैक असिमोव ने। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना।